Now see here, today we'll find the magnetic field inside a toroid. Okay, to find B field, to find B field inside a toroid. What is the meaning of toroid? Can you tell me? Toroid is actually, it is a tube, circular tube structure. सर्कुलर ट्यूब यू नो ना, साइकिल का ट्यूब देखा तुमने, उसको इन्फ्लेट कर लो, हवा भर लो, तो हवा भरने से इट बिकम्स अ सर्कल एंड इट इज अ ट्यूब. नाउ सच दैट वी इफ यू टेक इन स्पाइट ऑफ दिस ट्यूब मीन्स द रबर ट्यूब, इफ यू टेक सम PVC or plastic tube like that, and if you will own the copper, insulated copper wire around that particular tube, then what is the figure we obtain, what is the arrangement of system we obtain, that is known as the toroid. Okay, that is known as the toroid. Now the toroid can be air filled also, the toroid can be iron filled also. When that particular, you can say, that circular tube is filled with the iron core, then that is known as iron core toroid. And if it is not filled with anything, when only air is there, then that is known as the air core toroid. So we are taking here in the case of your air core toroid, air core toroid. Now see here the air core toroid. So here you see the air core toroid, because I told you that it consists of a tube, it consists of a circular tube like this. It consists of a circular tube like this, and in this circular tube what is present, you know, there the present is that here we are having the windings like this. ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें क्या रहते हैं, इंसुलेटेड कॉपर में क्या रहता है, वाइंडिंग्स रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे कोई सिस्टम कहीं भी दिखता है आपको, है ना, इस प्रकार की कोई सिस्टम को दिखता है कि वाइंडेड गोल सा वाइंडिंग जैसा सिस्टम अगर दिखता है आपको, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द टोरॉइड. क्लियर, नोन एज द टोरॉइड. तो इसको जो है नीचे से आया है ना, इट विल बी, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर, देन इट इज कमिंग, यहाँ से गया, फिर नीचे से आया, फिर यहाँ से डायरेक्टली जो है वी आर टेकिंग आउट लाइक दिस. नो नो नो, आई थिंक सो इट विल गो फ्रॉम इनसाइड. ओके, यहाँ से नीचे से आकर के, ओके ठीक है ना, you can take out from here, there is no problem. So this forms a toroid. Okay, so if you put a positive potential, negative potential at once, what will happen, the current will start flowing in the toroid, the current will start flowing in the whole toroid, the current will start flowing. So you have to find the magnetic field inside the toroid also. Inside the toroid you can find the magnetic field, then you have to find the magnetic field here, and you have to find the magnetic field in this location. So 1, 2 and 3 location you have to find the magnetic field. Now in order to get a precise drawing of the toroid, what I draw it once more like this in a very precise manner. Say this is the tube I am drawing here, I am drawing this tube, और ये ट्यूब बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को मैं काटते जाऊँगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ से काटूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इस प्रकार से मैं काट दिया हूँ, लेकिन करंट फ्लो आउट हो रहा सब में. जस्ट आई एम वांट टू शो दिस वन बाय कटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, नाउ हियर यू कैन से दैट इन दिस केस द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम से टॉप टू बॉटम. तो ये डॉट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस, फिर ये डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस, फिर डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस, फिर डॉट हो जाएगा, फिर ये क्रॉस, फिर डॉट, फिर ये क्रॉस, डॉट क्रॉस, है ना, ऐसे प्रकार के डॉट क्रॉस यहाँ पर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ दीज आर एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, आई कैन से यहाँ पर मैं बोल देता हूँ n टर्न्स, n टर्न्स है पूरा, absolutely there are n turns inside the toroid. The radius you can say from the mean radius from the center is capital R. So we have the region, this one, that is equal to your R is smaller than R, and we have the region say outside also we have the region, and this region, say in this case if it is R, then here we have R is greater than R, and R is the mean radius of the toroid. So if you want to find the magnetic field inside the toroid, means for region R is smaller than R.
तो इफ r is smaller than r means I should take a path like this, है ना। ये r से छोटा है मतलब ये अंदर में है इसका, है ना। तो यहाँ पर अंदर में अगर लूँ एंड अप्लाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है, अप्लाई एम्पियर circuital law. If we apply Ampere's circuital law, then we get closed line integral of your B dot dl, है ना, दोनों वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज, देखो ये वाली पाथ में कोई करंट इसके अंदर है कि एनक्लोज नहीं है। ये वाली पाथ एक एरिया को एनक्लोज कर रहा है, उस एरिया को छेद कर कोई करंट जा रहा है, उस एरिया को छेद करके कोई करंट जा रहा है, नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पर आई एनक्लोज्ड का जो वैल्यू है दैट इज 0। सो दिस इंप्लाइज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ योर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो द फील्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर इन दिस रीजन for r, small r is smaller than capital R, we get the magnetic field to be 0. Now if you consider this region that is here, that is when this particular say when r is equal to capital R, so in this case again you can apply the KVL बोला Ampere's circuital law and closed line integral of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed, ठीक है। अभी इसका जो आई एनक्लोज्ड होगा, देखो यहाँ पर ये है आई एनक्लोज्ड, इस सरफेस, ये वाली जो पाथ है ये सरफेस को एनक्लोज कर रहा, उस सरफेस को छेद करके एक करंट, दो करंट, तीन करंट, चार करंट, पांच करंट, कितने करंट्स रहेंगे भाई, n टर्न्स है तो n करंट्स होगा। तो मतलब यहाँ पर आई एनक्लोज्ड का जो वैल्यू है वो n टाइम्स क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, सीधी बात है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ योर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n टाइम्स क्या हो जाएगा, i। अब ये इसको करेंगे तो यहाँ से B और DL को अगर पूरा पाथ लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 पाई r सर्कमफ्रेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा उसके अंदर में, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल R। दिस यू गॉट इट एज दैट इज ऑन द ट्यूब, मतलब इनसाइड द ट्यूब ऑफ द टोरॉइड वी आर गेटिंग दिस B here like this. And for R is greater than R means the region outside the toroid. If you take outside the toroid, then apply Ampere's circuital law, we get B dot dl is equal to mu naught into क्या हो गया, I enclosed हो गया। अब इसमें I enclosed क्या होगा, ये बड़ा सा रीजन, इसके अंदर I enclosed क्या है। अभी देखो जितना करंट आ रहा है उतना करंट अंदर भी जा रहा है, जितना करंट आ रहा है अंदर भी जा रहा है, तो नेट करंट कितना भाई आ रहा है बाहर, या कितना अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। B डॉट डीएल क्या करना है, इस रीजन को निकालना है, इस पाथ में B डॉट डीएल मतलब ये पाथ कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है, उस एरिया एनक्लोज में छेद कर कितना करंट जा रहा है, एनक्लोज्ड वही है। तो यहाँ देखो एक करंट इधर आ रहा है, एक करंट अंदर में जा रहा है, तो नेट करंट कमिंग अगेन यहाँ आई एनक्लोज कितना हो जाएगा फिर 0, क्योंकि कुछ करंट बाहर आ रहा है, फिर वही करंट फिर अंदर में जा रहे हैं, तो नेट करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी तुम्हारा B का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। So this is all about the magnetic field inside the toroid.